Good morning, students. How are you? I hope you all will be very fine and be enjoying your lesson. Once again, I am with you with a new chapter, and the name of the lesson is Rip Van Winkle. This story is about a boy whose name is Rip Van Winkle, who is very lazy. He doesn't want to do any type of work. When his parents tell him to do something, he always makes excuses and go away into the hill and fall asleep. He is a completely lazy boy. Okay? So, this story tells us we must be active towards our work because work is our only sources through which we can get any type of success in our life. We must be active towards our responsibilities, towards our work, towards our any type of work which is given by our parents, by our teachers, and by any type of elders. So now I start this lesson. Many years ago, at the foothills of the Catskill mountain was a little village. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. Okay? The lesson tells that the name of the boy Rip Van Winkle lived in a very small village, and this village was situated at the hills of the Catskill Mountains. Rip Van Winkle was a very good-natured fellow. He was kind and always ready to help anyone. The children of the village liked him very much because he played with him. The students like those those boys, those students who are very lazy, who doesn't take interest in any type of study, who always wastes their times here and there in playing games and in other works. So these types of boys are always liked by anyone. Okay, but this is not a type of our good habit, because this type of bad habit always spoil our time, spoil our life, and spoil our positive attitude. In this paragraph, the writer said that Rip Van Winkle was a lazy boy, but he was very kind. The children of the village always liked him because Rip Van Winkle always used to play with them. He taught the children of the village how to fly kites, play marbles, and etc. Okay? The only problem with Rip was that he was very lazy. He did no work and just idled away his time. Rip's constant companion was his dog named Wolf. To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. Okay? One day, Rip just walked on and reached the highest part of the mountains. Tired of after his long climb, he lay down and began daydreaming. It was soon evening, and he realized it would be night by the time he reached his village.
कहने का मतलब बच्चों कि प्रस्तुत पाठ जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इस पाठ में एक ऐसे लड़के की कहानी कही गई है जो लड़का काफ़ी आलसी होता है। जब उसे अपने माता पिता के द्वारा किसी काम को करने के लिए कहा जाता तो वह अक्सर कोई ना कोई ऐसा बहाना बना देता है जिस बहाने से वह अपने काम से छूट सके। वह किसी काम को करना नहीं चाहता था, लेकिन एक उसमें अच्छी आदत यह थी कि वह हृदय से बहुत ही उदार था, हृदय से वह बहुत ही कोमल था, वह दयालु हृदय का था। जिस गांव में वो रहता था उस गांव के सारे बच्चे उसको बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उन बच्चों को वह गोली खेलना, पतंग उड़ाना और भी तरह तरह के खेल खेलना जानता था और खेलते रहता भी था। सिर्फ उसका एक साथी था, एक कुत्ता जिसका नाम है उल्फ। जब कभी उसके माता पिता उसे काम करने के लिए कहते तो गांव के पास जो पहाड़ था उस पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी पर वह चला जाता। एक दिन की बात है कि जब उसे काम करने के लिए कहा गया तो उस पहाड़ पर वह लगातार चढ़ते चला गया। चढ़ते चढ़ते काफ़ी देर हो गई, पहुंचता और पहुंच करके वह लौटना चाहता था, लेकिन लौटने के पहले देखा कि तब तक शाम हो चुकी है। शाम के समय लौटना उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि एक तो लंबी दूरी थी, लंबी दूरी के बाद अपने आप को लगातार चलाने के कारण वह शारीरिक रूप से थक भी चुका था। ये जो बातें हमने अभी की है, इस पाठ में जो कही हुई लेखक के द्वारा जो बातें हैं, ये बातें दर्शाती हैं कि हम अपने समय को कैसे सदुपयोग करें। यदि सुबह से उठ कर के और शाम के पहले का हमारे पास रूटीन होता है समय को उपयोग करने के लिए, तो हमारा काम बड़ी सहजता से होता चला जाता है और हम पूरी तरह से तनाव मुक्त होते हैं। हमारे मन में किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती कि चलो यह काम करना, यह काम मेरे लिए बड़े जटिल काम है। इस पाठ के द्वारा लेखक ने हमें समझाने की कोशिश की है कि आलस वह दुर्गुण है जो हमारे मन में घर बनाए हुए रहता है। हम जब किसी काम को करने के लिए चलते हैं तो वह आलस सबसे पहले हमें रोकता है उस काम को करने से। लेकिन उसी आलस के घर के बगल में ही एक घर होता है, जो कि घर होता है हमें अपने आप को सकारात्मक सोच को रखने की। वह सकारात्मक सोच उस आलस्य को हटाता है। और एक कहावत भी आपने सुना होगा कि मनुष्य किसी काम को करने से नहीं थकता, जब वह उस काम को करके और अपने गुण खुद लगता है कहने कि मैंने इस काम को किया है, तब उस काम को देखकर कुछ ज़्यादा थक जाता है। अपने घर में हंसिया देखा होगा, वह जितना चलता है उतना ही वह तेज रहता है, लेकिन जब उसको रख दिया जाता है तो उसमें जंग लग जाती है। हमारा मस्तिष्क भी वही है। यदि हम किसी काम को जिम्मेवारी पूर्वक समय से करते चलते हैं और यह कर्तव्य हम अपनी करते चलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कभी भी हमारे मन में आलस्य नाम की चीज़ नहीं आती। रिप वैन विंकल हमेशा काम से जी चुराता था, वह किसी काम को करना नहीं चाहता था। जब उसके माता पिता काम को करने के लिए कहते तो वह पहाड़ की ऊंची चोटी पर चला जाता अपने साथी जिसका नाम उल्फ था उसके साथ, और दिन भर सोया रहता। एक दिन की बात कि वह लगातार चलते चलते उस चोटी पर पहुंचा, लेकिन लौटने के समय शाम हो चुकी थी, वह लौट नहीं पाया। जब उसे नींद आ गई तो दिन में ही वह कुछ इस प्रकार के स्वप्न देखने लगा। स्वप्न देखने के बाद आगे की क्या बात होती है फिर हम लोग अगले वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। तब तक आपके पास जो अपनी बुक है उसमें जो लेसन है रीप वैन विंकल, उस रीप वैन विंकल लेसन को आप पढ़ें। मैं इस लेसन का कुछ हार्ड वर्ड मीनिंग और ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ स्पीच उसका क्या है वो लिख करके आपको मैं दूंगा। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से सुनेंगे, समझेंगे, समझ में नहीं आने पर मुझसे पूछेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।